تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ریجن کے اوپر جس کا نام آپ نے اکثر اپنی ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر دیکھا ہوگا، نام سنا ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لائف بیفور بارڈرز کشمیر اوریجن۔ تو کشمیر چونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے اس کو ایک ویڈیو کے اندر کنکلوڈ کرنا تھوڑا مشکل ہے، تو ہم اس سیریز وائز کوشش کریں گے کہ اس کو کنکلوڈ کر سکیں۔ کشمیر چونکہ اس کو ایک جنت کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے، یہ انڈیا کے نارتھ میں لوکیٹڈ ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ انسانی زندگی سب سے پہلے کب اور کس جگہ پہ آباد ہوئی ہے، ہمارے پاس کون سی ریسرچ ہے، کس ریسرچ کے مطابق ہمیں یہ ڈیٹا ملتا ہے، تو ہم اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے۔ کشمیر ایک ایسا ریجن ہے جسے چاروں طرف سے ہمالیاز نے گھیرا ہوا ہے، پھر ایک وادی کی شیپ اختیار کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے یہاں ہیومن سیٹلمنٹس کیسے ہوئی ہے۔ آرکیالوجی ریسرچ کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو آبادی ہے، جو انسانی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، وہ آج سے تقریباً 3000 قبل مسیح، اگر ماڈرن ٹائم کے مطابق اس سے بات کریں تو تقریباً 6000 سال پہلے یہاں پہ انسان آباد ہوئے۔ یہ ریسرچ جو ہے 1942 کو برٹش انڈیا کا دور تھا، تو اس میں برٹش کچھ جیولوجسٹ اور آرکیالوجسٹ اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ تو اس ریسرچ کے دو جو مین ریسرچر ہیں، آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر ان کے نام اور تصویر دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر تھامس پیٹرسن اور ہیلمٹ ڈی ٹیرا۔ یہ دو مین ریسرچر ہیں جو کشمیر ویلی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ انسانی زندگی پائی گئی ہے۔ تو اس ریسرچ کو 1942 کے اندر کنڈکٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اس ریسرچ کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں کوئٹ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، جس کو لیڈ کرتے ہیں مہاتما گاندھی۔ کوئٹ موومنٹ کیونکہ ایک بہت بڑی موومنٹ تھی، تو اس کو ہم اس ویڈیو کے اندر اتنا زیادہ بات نہیں کریں گے، کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ کوئی ویڈیو بنائیں گے۔ تو اس کوئٹ موومنٹ میں تقریباً ہندوستان کا ہر ایک انسان اس کو سپورٹ کرتا ہے، سوائے چند پولیٹیشینز کے اور چند جو پارٹیاں تھیں یا پرنسلی اسٹیٹس جو جتنی بھی تھی، وہ اس کو ڈینائی کر دیتی ہیں۔ برٹش گورنمنٹ اس کو ڈینائی کر دیتی ہے۔ تو ہندوستان میں جو سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت تھی مسلم لیگ، جس کو جناح لیڈ کر رہے تھے، وہ اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں۔ بعد میں یہ ریسرچ 1960 سے لے کر 1971 تک چلتی ہے۔ اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے ہیں ٹی این خزانچی، جو ڈائریکٹر تھے اور اس ڈپارٹمنٹ کے، وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ 1960s میں ہندوستان میں حکومت بنتی ہے جواہر لال نہرو کی، جو 1960 سے لے کر 1964 تک رہتی ہے۔ اس کے بعد 1964 سے لے کر 1966 تک لال بہادر شاستری ان کی حکومت آتی ہے۔ اس کے بعد یہ ریسرچ چلتی رہتی ہے۔ 1966 سے لے کر 1971 تک اندرا گاندھی کی حکومت آتی ہے۔ آرکیالوجی سروے آف انڈیا 1971 کو اس ریسرچ کو فائنل فارم میں دیتے ہیں ہمیں، مختلف وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے وہ اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ یہاں پہ انسانی زندگی آج سے تقریباً 6000 یا 7000 سال پہلے پائی گی۔ پھر اس سے بڑا جو چیلنج آتا ہے وہ ارلی ہیومن سیٹلمنٹس کیسے ہوئی، تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی سیٹلمنٹس کی وہاں پہ، کیونکہ انسان تو صدیوں سے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں افریقہ کے اندر یا باقی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، وہاں پہ انسانی زندگی یا ان کے اسکیلٹنز یا بونز ملتے ہیں جو تقریباً آج سے 3 لاکھ یا اس سے بھی پرانا آبادیوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ انسانی زندگی پائی گئی ہے۔ کیونکہ کشمیر ایک ایسا ریجن ہے، یہاں کی جو زمین ہے وہ تقریباً ایسیڈک ہے، فلڈی ہے اور آئسی ہے، تو یہاں پہ پریزرو کرنا لمبے عرصے تک کسی بھی چیز کو پاسبل نہیں ہے۔ تو کوشش کریں گے ہم اسے جتنے بھی ہمارے پاس ثبوت ملے ہیں جہاں سے یہ زندگی آباد ہوئی ہے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی رہائش کیسی تھی، ان کی خوراک کیسی تھی، تو ہم کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر سارا کچھ جتنا بھی ریسرچ ڈیٹا ہمیں ملا ہے ہم اس کے اوپر بات کریں۔ سب سے پہلا جو انسانوں کے لیے چیلنج تھا وہاں پہ سروائیول کا چیلنج تھا، کیسے وہ ڈیلی روٹین کو مینٹین کر سکتے، کیونکہ جہاں پہ انسان ہوتے ہیں وہاں پہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکل اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی خوراک اور ان سبھی چیزوں کو مینج کیا، گھروں کو کیسے مینج کیا، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی اوزار تھا نہ ہی کوئی مشنری تھی جس سے گھر بنائے جائیں، تو یہ بہت مشکل تھا اور محنت پر مبنی تھا یہ کام۔ سب سے پہلے جو ہمیں جس سائٹ کے اوپر آرکیالوجی سروے آف انڈیا اور جو اس سے پہلے برٹش ریسرچر نے نشاندہی کی تھی، سب سے پہلے جو ہمیں نیولیتھیکل سائٹ ملتی ہے کشمیر میں، وہ سائٹ ہے برزم، سری نگر سے تقریباً 16 کلومیٹر دور برزم کے علاقے میں۔ جب یہ ریسرچ 1960s میں کنڈکٹ کی جاتی ہے تو اس ریسرچ کے اندر یہاں پہ مختلف انسانوں کی ہڈیاں ملتی ہیں اور روزمرہ زندگی کے اندر جتنے بھی اوزار
यूज़ किए जाते थे, जितनी भी खुराक यूज़ की जाती थी उसकी निशानदेही की जाती है। मुख्तलिफ चीज़ें जो थी वो फुल फॉर्म के अंदर नहीं थी, बाद में उसको स्केच बनाकर उसको उस रिसर्च के अंदर पेश किया जाता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मेंटेन किया। तो सबसे पहले जो इंसानों के लिए मुश्किलात थी वहाँ के लोगों के लिए वो थी रिहाइश का। तो वो रिहाइश का बंदोबस्त कैसे करते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर जो इनके घर थे वो ज़ेर ज़मीन थे, जो पत्थरों के ऑलरेडी नेचुरली बिल्ट थे, कुछ ये खुद बिल्ट करते हैं। और उसकी जो छत थी वो लकड़ी की, उसका जो फ्लोर था वो तकरीबन हार्ड था, आसान नहीं था उसके ऊपर स्टे करना, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो है मुश्किल थी, मेहनत पर मबनी थी। तो हम देखते हैं इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी थी। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज आता था खुराक कहाँ से पूरी करते थे, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई ऐसी मशीनरी थी जिससे वो खुराक या कोई ऐसे सीड्स पाए गए थे इस इलाके के अंदर जिससे वो अपनी खुराक पूरी कर सकें। तो इनका जो मेन सोर्स ऑफ फूड था वो था तकरीबन शिकार। ये लोग शिकार खेलते थे और शिकार के लिए तकरीबन जो इनका बेस्ट सीजन था वो था अप्रैल से लेकर अगस्त तक, क्योंकि इस समर सीजन के अंदर ही शिकार खेला जा सकता है कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो तकरीबन सितंबर से लेकर मार्च तक माइनस में चला जाता था। ह्यूमन सेटलमेंट्स अभी नई हुई थी, तो मेन सोर्स ऑफ फूड जो था वो शिकार के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट थे। फिर कुछ शवायद मिलते हैं गंदम के, गेहूं के और मसूर की दाल के कुछ शवायद मिलते हैं कि ये लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस खुराक का यूज करते थे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये वाज़ेह हो जाती है कि ये जो व्हीट और मसूर की दाल है ये कश्मीर का चूंकि इंग्रेडिएंट नहीं है, इस जमीन के अंदर इसको उगाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ से ये रिसर्चर्स अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी और स्टेट्स के साथ या बाहर की दुनिया के साथ भी इनका कनेक्शन था जहाँ से ये इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि कश्मीर एक कॉरिडोर है। यहाँ से एक रास्ता मिलता है जो स्टेट ऑफ कल्लात की तरफ मुंसलिक किया जाता है कि इनका रास्ता जो है स्टेट ऑफ कल्लात, स्टेट ऑफ सवात भी कहते हैं उसको। वहाँ पर जितने भी रहने वाले लोग हैं वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्ट की जाती थी और कश्मीर से कुछ चीज़ें जो वहाँ पे स्टेट ऑफ कल्लात के अंदर जो है एक्सपोर्ट की जाती थी। सबसे पहले जो मेन सोर्स ऑफ फूड था वो इनका शिकार था। बाद में ये लोग व्हीट का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं, राइस चावल जो कि आज एक फेमस इंग्रेडिएंट है कश्मीर के अंदर, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इसके सीड्स बाद में इंपोर्ट किए गए हैं, आज से तकरीबन 6000 साल पहले। इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि वहाँ पे पाया गया है या नहीं। सर्द मौसम से बचने के लिए इन्होंने घर बनाए हुए थे ज़ेर ज़मीन, और ज़ेर ज़मीन ये लोग अगस्त से लेकर एंड ऑफ मार्च तक ये लोग उन घरों के अंदर चले जाते थे, जो कि मुश्किल था वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना। लेकिन इस रिसर्च के मुताबिक हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो आबादी थी वो तकरीबन 150 अफराद पे मुश्तमिल थी या 300 पे। तो फिर एक और रिसर्च कंडक्ट की जाती है 1981 में, एक और साइट को एक्सप्लोर किया जाता है उफकराल। ये तकरीबन श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर है, पहलवामा के करीब है ये जगह। तो यहाँ पे सेम शवायद मिलते हैं इंसानी ज़िंदगी के, बोन्स मिलती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें यूज़ करते थे उनके शवायद मिलते हैं, ह्यूमन्स बॉडीज़ की हड्डियाँ मिलती हैं, उसके बाद तीर मिलते हैं, एक्सिस मिलते हैं, नीडल्स मिलती हैं। ज़्यादातर ये शिकार खेलते थे तकरीबन जंगली बकरी का, हिरन का और बाकी जितने भी उस दौर के अंदर एनिमल्स थे। बाद में इन लोगों ने कुछ बकरी हो गई, हिरन हो गई, इनको अपना डोमेस्टिक कर लिया था, इनको पालना शुरू कर दिया था घरों के अंदर। फिर कुछ जो हमें कब्रें मिलती हैं जहाँ से इंसानी बॉडी की हड्डियाँ मिलती हैं, उसके साथ कुत्तों की हड्डियाँ भी मिलती हैं। इससे एक चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कुत्तों को एज अ खुराक यूज़ नहीं करते थे, बल्कि पेट्स को ये घरों में पालते थे। और एक चीज़ और भी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि आफ्टर डेथ न्यू लाइफ के अंदर ये लोग बिलीव करते थे, जो रिलीजियस बिलीफ ही हो सकता है, क्योंकि रिलीजन उस वक्त थे नहीं जो आज के दौर में। अगर मॉडर्न दौर के मुताबिक देखा जाए तो जो रिलीजन है इनकी इतनी पुरानी तारीख नहीं है, आज से तकरीबन 10,000 कोई पुराना रिलीजन नहीं है। तो ज़्यादातर इनका जो रिलीजियस बिलीव था वो ज़्यादातर परिंदों के अंदर बिलीव करते थे, चांद सितारों के अंदर बिलीव करते थे, नेचर के अंदर बिलीव करते थे। तो बुत परस्त कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग जो थे वो बुत परस्त थे। मुर्दों को दफनाना, इज्जत के साथ मुर्दों को इज्जत दी जाती थी। फिर मेडिकल शवायद मिलते हैं कि मेडिकल ये लोग रिसर्च कर रहे थे, इंसानी ज़िंदगी को ये मुकम्मल तौर पर समझ चुके थे। अब इन लोगों की जो ज़िंदगी थी वो मेहनत पर मबनी थी, पत्थरों से बने हुए औजार हथियार जितने भी थे ये यूज़ करते थे, जो हमने उस रिसर्च से उठाए हैं। तो ये सारे सबूत मिलते हैं कि ये इंसानी ज़िंदगी कई सदियों से यहाँ पे आबाद है। इससे एक पता चलता है कि यहाँ पे इंसान आज से तकरीबन मॉडर्न टाइम के मुताबिक 6000 साल पहले आबाद हो चुके थे और वो मुस्तकिल
मुस्तकिल ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे थे, अपनी ज़िंदगी को, अपने मौल माशरे को वो समझ चुके थे। जितने भी ह्यूमन स्केलेटन्स, बोन्स मिलती हैं, उससे एक चीज़ ये पता चलता है कि ये लोग मेडिकली कुछ रिसर्च कर रहे थे। फिर 11 लोगों की खोपड़ियाँ मिलती हैं, सरों की हड्डियाँ मिलती हैं जिसमें से सुराख किए जाते हैं। अब रिसर्चर्स का मानना यह है कि इस रिसर्च के अंदर ब्रीफली ये नहीं कह सकते आया इलाज किया जा सकता था, लेकिन मोस्टली रिसर्चर्स कहते हैं कि ये इसलिए किया जा सकता था कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर कोई पेन या दर्द हो तो उसको कम करने के लिए, या किसी भी जिस्म से रूह को निकालने में आसानी रहती थी, इसलिए उन खोपड़ियों में जो सुराख थे वो किए जाते थे। फिर उन मुर्दों को दफनाया जाता था। फिर हमें कुछ शवाहिद मिलते हैं, मिनहरस जो पत्थर हैं जो आज भी मौजूद हैं, तो उससे वो स्केच बनाकर वो कह सकते हैं कि ये इन लोगों ने बनाए। उसकी बेसमेंट जो है वो पत्थर की बनाते हैं ताकि जमीन जो है नीचे, क्योंकि दबने वाली जमीन है, जमीन दबे ना। फिर कुछ कापर हारपून मिलती हैं, क्योंकि कापर जो था वो किसी बाहर की दुनिया से कापर के हारपून जितने भी मिलते हैं वो किसी बाहर की दुनिया के साथ भी में थे। तकरीबन पूरी इस वैली के अंदर ये लोग आबाद थे, तो इंसानी जिंदगी यहाँ पे आज से तकरीबन 6000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। काम इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ था। घरों का जो काम था ज्यादातर खवातीन करती थी, लेकिन इसका कोई मुकम्मल सबूत नहीं मिलता कि कैसे काम को इन्होंने डिवाइड किया था। लेकिन इमेजिन कर सकते हैं हम लोग के जो बाहर की जिंदगी थी, जो बाहर जो शिकार खेलने की, जो ये लोग शिकार खेलते थे, वो तकरीबन मेल्स जाते थे, मेन सोर्स ऑफ जो फूड था वो लेके आते थे और खवातीन उनको घरों में रिजर्व करती थी। फिर हमें नीडल्स मिलती हैं जिसके अंदर आईज का निशान है, सुई जिसे आप हमारे ज़बान में सुई भी कहते हैं, जिससे वो कपड़ा बनाते थे बाद में, जो कि एक सिग्नेचर बनती है कश्मीर की, जो कपड़ा बनाया जाता है आज भी मॉडर्न कश्मीर के अंदर। तो फिर इससे ये पता चलता है कि वो शिकार से जो खाल्स लेके आते थे, जो एनिमल्स की खाल्स थी, उसको एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर वो लेके जाते थे। वहाँ से कुछ स्क्रैपर्स मिलते हैं जो पत्थरों को काट कर उनसे एक दार बनाई जाती थी, उन पत्थरों के उसके पूरा स्क्रैपर बना के उससे जो फैट था, फैट को रिलीज किया जाता था। रिलीज करने के बाद उसको एक प्रॉपर वे के अंदर सुखा कर उसको बाद में कपड़े के अंदर कन्वर्ट किया जाता था। इससे मतलब ये जाहिर होता है कि ये लोग इंटेलिजेंट थे, इन अपनी जिंदगी को समझ चुके थे, हैंडमेड मशीनरी को बना चुके थे। फिर जिंदगी इनकी तकरीबन आसान हो चुकी थी। बाद में ये लोग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर उस जमीन के ऊपर वो अपने वीट को, गेहूं, इन सब चीज़ों को वो उगाने की कोशिश करते हैं। फिर बाज़ लोग ज़मीन के ऊपर भी घर बनाना शुरू कर जाते हैं लकड़ी के साथ। जितने भी एक्सेस मिलते हैं वो इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि बाद में ये लोग ज़मीन के ऊपर आबाद हुए जो टेम्परेचर अच्छा होना शुरू हुआ। इस रिसर्च के अंदर ये हम देख सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ को जो है सेलिब्रेट किया जाता था। कोई भी नॉलेज था जो रिटन फॉर्म में नहीं था, तो ओरली नॉलेज को कन्वर्ट किया जाता था नई नस्ल के अंदर। और चाइल्ड एज ए मेडिकल असिस्टेंट, अगर कुछ लोग शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, किसी को चोट आ गई है, तो उनको साथ रखा जाता था, उनको सिखाया जाता था कैसे मरहम पट्टी करनी है, कैसे उस जख्म के ऊपर पट्टी को कैसे बांधना है। ये चीज़ें ओरली नॉलेज को कन्वर्ट किया जाता था नई नस्ल के अंदर। फिर इन मैरिज के जो कंसेप्ट मिलता है, इंटरकोर्स मैरिज की जाती हैं, बाहर के इलाकों में भी की जाती हैं, स्टेट ऑफ कल्लात के साथ इनका कनेक्शन था। फिर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भी किया जाता था उनके साथ। इनके ज़्यादातर घर जो कि ज़ेर ज़मीन थे, तकरीबन 300 की आबादी बरसम में रहती थी, 1000 के करीब इनकी टोटल आबादी होगी। बाकी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी तमाम सबूत हमें ये बताते हैं कश्मीर में जिंदगी सरहदों और शहरों से पहले बहुत मुस्तकिल हो चुकी थी। ये लोग यहीं पे रहते थे, यही इनके घर थे, मेन सोर्स ऑफ फूड भी इनका यही था। फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितनी भी चीज़ें कहती थी, उनकी मेन करेंसी जो थी वो चीज़ें ही थी। एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ को लेना इनकी मेन करेंसी थी। ये इंसानियत पसंद थे, मेहनत और मुशक्क़त के ऊपर मबनी इनकी ज़िंदगी थी। कंक्लूजन के इस आखिरी जुमले में हम उन तमाम सेटलर्स का जो कि आज से 6000 साल पहले इस पहाड़ी खित्ते के अंदर जो कि मुश्किल तरीन ज़िंदगी इन्होंने बसर की है, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि एक ज़िंदगी को उन्होंने जन्म दिया वहाँ पे और नई नस्ल के अंदर ओरल नॉलेज को कन्वर्ट किया। जो इंटरनेशनल अदारा है UNESCO, वो कहता है कि ये जो कश्मीर वैली है ये एक सबसे अच्छी प्लेस है रिसर्चर्स के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए। तो एक मुकम्मल ट्रिब्यूट पेश करता है ये अदारा इनको कि इंसानी जो ज़िंदगी वहाँ पे पाई गई है मेहनत और मशक्क़त पे मबनी थी। आप इस रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं जो उन्होंने तैयार की है। फिर बरज़म के इलाके को एक इंतहाई खूबसूरत स्टोरी टेलिंग और यूनिक कंसीडर करते हैं। सारा क्रेडिट वो इस वैली के जितने भी जो बशिंदे गुजरे हैं, जिन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी को मामूल किया, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं UNESCO। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे द जियोग्राफी ऑफ आइडेंटिटी, फिर कश्मीरियत, कल्चर एंड फिलासफी, इन्वेजन एंड रेजिलियंस, पार्टीशन एंड इम्पोज बॉर्डर्स, मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल फॉर लाइफ, for identity, modern Kashmir, politics,
आइडेंटिटी एंड कल्चर एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लाइफ बिफोर बॉर्डर्स। तो इस सारी रिसर्च का जो क्रेडिट है आर्कियोलॉजी, सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये सारी रिसर्च जिन लोगों ने कंडक्ट की है, ये सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने इस रिसर्च से हमें बताया है जितने भी हमें एलिमेंट्स मिले हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर यूज़ किए जाते थे, कि यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी आज से कबल 6000 साल पहले आबाद हो चुकी थी। मेहनत और मशक्क़त के साथ इन लोगों ने ज़िंदगी को ज़ेर मामूल किया